ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਯੋਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਜੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਮੀਨ ਮਾਈ 20s ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ 95 years old, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਈ ਥੋਟ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟੱਚਵੁੱਡ ਹੀ ਸੋ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਯੋਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕਾਮਚੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੈਚੁਰਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਮੈਂ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਟੂ 46। ਜੀ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੀ। All along it has been there. Now I do it for 1.5 hours. It includes meditation, yoga, and then exercises. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ। ਜੀ। ਆਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਨ 1982। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ I was also inspired by the then Chief Secretary, Mr. S.D. Bhamri. He also was of my age. तो हम दोनों कई बार कसरत के बारे में बातें करते थे। तो विदाउट एक्सरसाइज लाइफ इज नथिंग। आज मैंने अपना टेस्ट करवाया है, मेरे को पेसमेकर लगा हुआ है। पेसमेकर की लाइफ जो होती है कि 10 years। तो सन 14 में लगा था और वैसे तो 6 साल हो गए लगे हुए को, तो ये 4 साल और चलना चाहिए था। मगर आज मैंने टेस्ट करवाया वो जो, तो उसमें वो कहता है कि इसकी लाइफ अभी 8 साल कुछ महीने। आई डोंट नो वेदर इट इज बीइंग रिचार्ज बाय द एक्सरसाइज और व्हाट, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट, बट द लाइफ ऑफ द battery of the has increased, so to say. So I can say obviously I'm sure about it. It is all because of yoga, kasrat, meditation. Wow, it's a miracle I think. ਤੇ ਜੀ this is for sure ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ है। दोनों अपने घर में खुशी सुख है, सुखी है। बेटे का एक बेटा 2 बेटियां हैं, बेटी की एक बेटी एक बेटा है। बस अपने घर में। मगर वे मेरे को ये चीज़ का दुख है कि उनमें कोई भी ऐसा नहीं निकला जो मेरे को फॉलो करता हो।
because of the body building. If I had a second son, अगर वो दूसरा बेटा होता बेटी की बजाय, तो मैंने उसको रेसलर बनाया था। आज भी मैं WWE शाम को रोज देखता हूँ। So who is your favorite player? Favorite wrestler? Many wrestlers I have come across right from Lahore. There was one wrestler known as Dara Singh, Dara Singh Senior, not this Dara Singh who was working in films. So that person, वो inspired me like that. मैं ने उसके बारे में सुना था कि भाई ही इज़ ए वर्ल्ड रेसलर, वर्ल्ड चैम्पियन। तो इट वाज फैक्ट। वो शिमले में कुश्ती लड़ने आया था, तो मेरा बेटा जो है वो 4 साल का था, 3-4 साल का। मैं उसको कंधे पे बिठा करके वो रेसलिंग दिखाने लेके गया था कि भाई तू भी देख भाई रेसलिंग कैसे होती है। तो इंस्पायरेशन तो शुरू से रही। वो एक टॉड जॉनसन होता था, अफ्रीकन रेसलर, द टॉलेस्ट, द हैवीएस्ट एंड द अगलीस्ट रेसलर ऑफ द वर्ल्ड। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਆਸਕ, ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ what about your life partner ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। नहीं, शी वॉज नॉट दैट टाइप। ਜੀ वो ज़्यादा धार्मिक थी बस। और शी एक्सपायर्ड अबाउट 5 years ago। ठीक है, मैंने कोई उसके बाद आई नेवर फेल्ट इट, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। वन हैज़ कम, इसलिए जाना तो जरूर है। तो ना तो कोई है ना कोई रहेगा। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੀ ਨੇਚਰ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਯੋਗਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਡ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मेरे को 1947 में फूड पॉइजनिंग हुआ था। अमृतसर में हम ऑफिस खोलने के लिए थे, अमृतसर खालसा कॉलेज अमृतसर के हॉस्टल में। तो वहाँ पर मेरे को ये फूड पॉइजनिंग हुआ था। तो जब फूड पॉइजनिंग हुआ था तो हम 10 आदमी थे जो इस बीमारी से फंसे हुए थे। तो मेरे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स जो थे वो सब देवर स्टैंडिंग अराउंड मी, और उन्होंने कहा कि जो लाहौर से बच के आ गया है उसको हम मरने नहीं देंगे, तुम बोलो हम दवाई ला देंगे जहाँ से मर्जी लाएं। तो डॉक्टर ने कहा कि दवाई तो मेरे पास है, बट हिज केस इज़ वेरी सीरियस। और मैं नींद में, बेहोशी में, उसको मैंने कहा कि ये मेरे को हैजा तो नहीं हुआ? वो कहता हाँ ऐसा ही हुआ है। मैंने कहा इससे नहीं मैं मरता, कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जब मेरे को फिर बाद में नींद आ गई थी एंड आई गॉट अप आफ्टर 5 hours, तो उसने कहा कि ही हैज सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विल पावर। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਟਲੀ, ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਥਾਟ ਔਨ ਦੈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੰਡਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, you are well experienced. I think you're the right person to talk to ask this question ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ, ਐਂਡ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ what is your thought on this immunity and will power thing? बात यह है कि विल पावर तो अपनी जगह है, विल पावर तो देयर इज नो मैच अबाउट इट।
और विल पावर से तो आदमी सब कुछ कर लेता है। जी पुराने जो योगी थे, जो सन्यासी थे, वो भी तो अपने विल पावर से जीता रहते थे। बिल्कुल कई हजार साल से जिंदा रहते थे। तो विल पावर इज नेसेसरी। अगर विल पावर नहीं है तो हम फिर उसको आगे गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाती। एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਹੁਣ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਲੇਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ अनफॉर्चुनेटली यू कैन से आई वॉज नेवर इन्वॉल्व इन दैट। मैं जिस एरिया में था वहाँ वो नहीं आई, तो इसलिए मेरे को उसका कोई मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मगर सुना जरूर है। अब भी मेरा मतलब इन माई हार्ट ऑफ हार्ट मैं फील करता हूँ कि माई इम्यूनिटी इज़ बेटर देन सो मेनी यंग पीपल। मैं सारे काम करता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माय आई साइट इज़ सो नाइस कि ना तो मैं बगैर ऐनक के अखबार भी पढ़ता हूँ और लिखता भी हूँ, रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। आँखों की एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन हरियाणा सीनियर सिटीजन्स काउंसिल पंचकूला। तो वहाँ मैं हरियाणा का ऑफिसर होने के नाते मैंने ये खेल विभाग को लिखा था। तो योगा का एक टीचर थी, उसकी ड्यूटी लगवाई थी कि ये यहाँ आकर के सीनियर सिटीजन को योगा कराया करे। तो वो 6 महीने हम वो एक्सरसाइज करते रहे, उससे कई चीज़ें सीखी एंड दोज आर वेरी बेनिफिशियल। उसमें आई साइड के भी एक्सरसाइज थी, वो भी करते थे। तो आदमी का जब तक किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो उसको लाभ तो हो नहीं सकता। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਆਵੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਡੇ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ 21 ਆਫ ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਡੇ ਆ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਮ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਆਸਕ ਯੂ ਦੈਟ ਕਿ ਕੀ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ यूनिवर्सिटी ਦੀ 17 टाइम्स की ट्रॉफी जिताई थी अपनी टीम। तो वो कहता था कि एक मक्खन खाने वाले को अलग बिठा दो, सूखी रोटी खाने वाले को अलग बिठा दो, और सूखी रोटी खाने वाले को कहता उसमें मतलब मैं उसको ज़्यादा काम वो सीख जाएगा और वो ही विल आल्सो स्टैंड बेटर देन जो मक्खन खाने वाला। तो वो डिस्टेंस मतलब कई बार बातें होती थी तो वो बताया करता था, और मगर मैं उससे मुतफिक नहीं था, ये तो बात अलग है। क्योंकि मेरे फादर को इंटरेस्ट रहता था कि घर में गाय भैंस होनी चाहिए। तो गाय भैंस के होने से तो ये था कि भैया मक्खन और दूध खूब मिलता था, इसलिए डाइट भी बड़ी थी। तो डाइट अच्छी है, डाइट भी जो है दैट इज़ एसेंशियल। जब आपको एक्सरसाइज करोगे भूख तो लगेगी, जब भूख लगेगी तो उसको आप मेंटेन करोगे। और एक सेकंड आइटम जो मैं भूल रहा हूँ, आई मे टेल यू कि पंक्चुअलिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो मैं जब ऑफिस जाता था तो 8:30 बजे तैयार होता था। आज भी मैं 8:30 बजे तैयार होता हूँ, मेरे को कहीं जाना नहीं होता, बट आई एम रेडी। उसके बाद 10 बजे
मैं चला जाता हूँ सीनियर सिटीजन काउंसिल के डे केयर सेंटर में, वहाँ जा कर के 3 घंटे लगाता हूँ। वहाँ इंडोर गेम्स हैं, वहाँ 100 आदमी आ जाता है, गपशप मारते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है, तो ये सारी चीज़ चलती रहती है। दैट गिव्स मी इंसेंटिव कि मेरी रेगुलरिटी बनी हुई है। बिल्कुल वो एक रेगुलरिटी ऑफ लाइफ जो है दैट इज़ वेरी एसेंशियल। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਇਸੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸੀ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? मेरे ख्याल है 70 के साल तो हो ही गए। 70 साल ਦੇ ਚ रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी, कहीं जाना होता है तो आई एम ऑलवेज इन टाइम, rather 5 minutes earlier। तो ये 2-3 चीज़ें जो है, दिस हैज़ पेड मी इन लाइफ वेरी मच एंड आई एम स्टिकिंग टू दैट। ਬਿਲਕੁਲ I'm just keeping my fingers crossed ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। I'm getting so much, you know, so much of power, so much of positive vibes from him ਕਿ 70 years ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਤ, he's so sorted, ਇੱਕ punctuality, this means something. I think let's take the example of this corona and quarantine. ਇਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਪਾਏ। We are getting bored। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਘਰੇ ਬੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ मेरी ये चिट्ठी मोदी साहब को पहुंची कि नहीं पहुंची। जी मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी जी कि हिटलर ने 6 साल में जो थी वो क्या नाम उसका, पंक्चुअलिटी जी और डिसिप्लिन, जी ये 2 चीज़ें क्रिएट करी थी। बिल्कुल और हर यूथ को वो 3-3 साल 2 साल की ट्रेनिंग मिलती थी, हर नेवी की, आर्मी की, जी एयरफोर्स की, जी एंड द नेशन वाज वेरी मच डिसिप्लिन्ड। जी तो मैंने कहा ये ट्रेनिंग जो है कंपलसरी करो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जिससे कि ये नेशन में डिसिप्लिन आए। जी और आज देख रहे हैं कि कोरोना में जो चीज़ें वो बताते हैं वो लोग ऐसे गंद डालते हैं कि जिसका अंदाज नहीं है। ये नहीं होनी होती तो भी बढ़ती है, क्योंकि डिसिप्लिन तो है नहीं। जी आई फील इट इज़ ए मोस्ट इनडिसिप्लिन नेशन। जो कहो उल्ट करते हैं, इसमें कोई ऐसी डिसिप्लिन वाली कोई बात नहीं है। जहाँ डिसिप्लिन मेंटेन रहा है वहाँ सुखी हैं लोग, जहाँ नहीं रहा एक दिन एक आदमी को बजाय बजाय लाख आदमी इकट्ठा हो जाता है, वो क्या डिसिप्लिन रहता है? ये फैलती बीमारी इसी कारण फैलती है कि व्हेन वी आर माउथ टू माउथ विद ईच अदर, तो वो फैलेगी। तो ये डिसिप्लिन तो ये है हमारे नेशन में। सो आई डोंट नो चिट्ठी ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ श्योर गौर फरमाया जाऊगा। तो मोदी जी ने तो सिर्फ आत्मनिर्भर जी 2-2.5 साल की बात है ये, मैंने जब लिखा जी तो अब कई बात यह है कि भाई मैंने भगवान पे छोड़ दिया है कि भाई ये अपने आप ही किसी को अकल आए तो आए। अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इनका सुधार कर सकूँ। ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਉਹ कहने लगा जी मैंने पुलिस में भर्ती करा दो। मैंने उसको आई गॉट में जॉब हेल्प रादर, मैंने कहा करने वाला कौन था? करने वाला तो भगवान था। उसको पुलिस में नौकरी दिला दी। और जाती बार मैंने उसको एक बात कही थी, मैंने कहा देख भाई, मैंने ज़िंदगी में रिश्वत नहीं खाई एक पैसे की भी, और मेरी इज्जत रखना। और उस लड़के ने सारी ज़िंदगी प्रमोशन नहीं ली इसलिए कि भी अगर मैं प्रमोशन ले लूँगा तो ये ऊपर वाले मेरे से पैसे मांगेंगे, मैं कहाँ से दूंगा? इसका मतलब ये है कि मैं करप्ट हो जाऊँगा,
इसलिए मैं करप्ट नहीं होना चाहता। एंड ही नेवर गॉट इज दैट प्रमोशन। एज ए सिपाही ये रिटायर हो गया और कहता कि मैं इसमें बड़ा खुश हूँ। आई थिंक बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ 70 ਇਅਰਸ। ਉਹ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟਕ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ਇੰਨੇ ਸੌਰਟਡ ਫਰਮ ਆਰ 17 ਇਅਰਸ। हैट्स ऑफ टू यू। ये तो बात ये है कि आदमी को कुछ न कुछ तो अपना आप मेंटेन करना पड़ता है एंड ही शुड डू इट। उसका कोई एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ तो होना चाहिए, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ तो होना चाहिए जिसमें कुछ तो उसका अपना करेक्टर होना चाहिए। लोगों के बातों में आकर के जिया तो क्या जिया, ऐसा क्या। That's really sweet. ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਆ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣਾ, ਸਟਮਕ ਏਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਕੋਈ ਹੋਮ, ਕਿਸੇ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। नहीं हार्मफुल नहीं। कई तो चीज़ें ऐसी होंगी ने कि जड़ियाँ जिस तरह नेचुरल क्योर से भी ठीक भी हो जाती हैं। तो बाकी ये है कि भी मैं होम्योपैथिक में बिलीव करता हूँ और मैं होम्योपैथिक का मतलब स्टॉन्च सपोर्टर भी हूँ। तो इसलिए मेरे को स्वामी शिवानंद आश्रम बड़ौदा, वहाँ से वो किट भेजते हैं कि उसमें 20 मेडिसिन होती हैं। तो 20 मेडिसिन जो हैं इट कैटर्स अबाउट 300 डिजीज़। तो वो मेरे को तो ज़बानी याद है, मैं तो जिस किसी को वो दवाई देता हूँ तो ठीक हो जाता है, फ़र्क पड़ जाता है उनको। बच्चों को भी घर में सबके पास है दवाई, वो सभी वो इसी दवाई पे चल रहे हैं एंड दे आर साउंड, सेफ एंड साउंड और खुश है। कभी मज़े से आराम से दवाई भी खाई जाती है और ट्रीटमेंट भी ठीक हो जाता है। That's very good. I won't take much time, बस मैं पूछना चाहांगी कि आजकल फॉर एग्जांपल जो हुन करंट सिचुएशन है ਉਹਦੇ ਤੇ हाउ टू स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ਤੇ विल पावर, क्योंकि ਇਹ आई गेस इज द बेस्ट एग्जांपल ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ आई गेस बहुत ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ आई just want to know that। बस मैंने तो दसा ना कभी रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, दीज आर द 2 हॉलमार्क्स ऑफ लाइफ। ये चीज़ होनी चाहिए, इससे अपने आप सेहत अच्छी रहती है, इट हेल्प्स। और ये करके देख ले, बगैर किसी एक्सरसाइज के भी देख ले तो भी चलेगा। एवरीबॉडी विल बी लीडिंग ए गुड लाइफ। थैंक यू सो मच, इट फील्स सो ग्रेट टू टॉक टू यू। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर टॉकिंग टू अस। Thanks for you to have come and asked me all these things which were essential to be told to so many persons at large, ताकि उनमें भी ये भावना आ सके और वो अपना आप में सुधार करके अपना अच्छा जीवन बिता सके। Thank you so much, and we need more people like him. I feel so good. I feel so blessed while talking to him, and ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, but it's my job. I just came here. I had a word with him. I sat with him, and I realized ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। I think we should start it from today onwards, ਕਿਉਂਕਿ the way he said mere kanna ch hale vi oh galla, it's been 17 years, he's so punctual, he's so sorted, and touch wood, he is so fit and fine in front of me. I just want ke hamesha ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ I just have a request from all of you, please stay safe, ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਯੋਗਾ ਕਰੋ of course, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹੋ। 2 गज की दूरी छड़ के 2 फुट की दूरी नहीं कहते, एक दूसरे के उपर चढ़े होंगे, लाइना तोड़ते हैं, घसमान बचा होंगे, पुलिस नाल युद्ध करते हैं। डिसिपलिन की है, किसी ने कोई गल सीखी तो है नहीं कभी कि भी ये एसेंशियल चीज़ है, वी शुड फॉलो इट, इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी। कोई किसी और की सेफ्टी का नहीं, हमारी अपनी सेफ्टी है इसमें।
तो उसको भी लोग नहीं समझते। आई होप कि इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग की बहुत सारी फैमिलीज दे विल फॉलो यू। आई एम श्योर आई आल्सो ट्राई दैट कि जो भी गल्लां इन्होंने कहियां आप फॉलो करिए तो मे बी कुछ हद तक साडी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, साडी अटेंशनस खत्म हो जाए, असी पंक्चुअल हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक जो अगे टाइम आने वाला है दिस विल बी वेरी टफ आई कैन से। ते जस्ट होप फॉर दैट कि तुसी सब अपना ख्याल रखोगे, इन्हां दियां गल्लां ते फिर श्योर फॉलो करोगे इन्हां दियां गल्लां नूं। ते इस पॉइंट ऑफ टाइम ते जस्ट आही आ कि जब भी बाहर जाते हो प्रिकॉशनस लवो, आपका ख्याल रखो। ते ऑफ कोर्स रब अगे अरदास करो क्योंकि 2020 बहुत ही आई कैन से कि बहुत बुरा चढ़िया है। इन्नियां सारियां डेथ्स हो रही ने, इन्ने सारे केसेस आ रहे हैं, लॉकडाउन बहुत सारे कम रुके पे ने। इन शॉर्ट साडा देश थोड़ा जिहा पिछे रह चुका है। सो अजिहे विच प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग अस। This is me, Sonali, signing off with camera person Anand. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।